Good morning, students. How are you all? I hope you all will fine. Today we will start our topic, that is differentiate between formal and informal sector, which we did yesterday also in the class. So tomorrow we will continue with this topic. Plus, we will do today about unemployment and their types of unemployment. Basically, when we talk about the formal sector or informal sector and their differentiate. First, we talk about formal sector. who are not having the casualization there कि वहाँ casualization की situation नहीं है, casual worker नहीं है, वहाँ regular hired worker है, who having all the type of security, social security, provident facility, gratuity here. Clear? So we can say that formal sector are organized sector. They can make a trade union. They can make a union which is related to the trade. Trade basically means goods and services, exchange of goods and services. That is known as your trading activity, where production, consumption, saving, investment, these activity are done basically, which is known as economic activity also. So all type of laws, protections are there in the formal sector. But the opposite of this, in contrast of this, when we talk about informal sector, basically they cannot make a trade union. They are considered as an unorganized sector. They can't having the protections laws and using these laws. These things cannot done in the informal sector. So basically, first when we talk about the formal sector, or second, next one is informal sector. So first difference is work in organized sector. All type of legal formalities are there. All type of work they can easily do. So when we talk about the formal sector, it is known as organized sector. When we talk about informal sector, organized sector is not there, unorganized, because they in this casual workers are there, and casual workers are who do not regular salary are there, कि जिनकी proper salary नहीं है. Whenever work is there, on this time they can do the work. Rest of time they are considered is an unemployment category. Clear? So regular hired worker is not there when we talk about the informal sector. When we talk about the formal sector, then regular hire worker is there. Casualization not in the formal sector. So next, when we talk about are entitled to all type of social security, all type of benefit, provident fund facilities are there in the formal sector. So when we talk about the informal sector, these type of social security, provident fund facility, gratuity, these things are not benefit in the informal sector. तभी तो जो हम वो लोग काम करते हैं उनके पैसों को हम क्या बोलते हैं? We are consider or we are saying and using the word wages there, not the using the word salary. Wages को whenever they have the work, on that time they will do the work. Rest of the time they are considered in which category? That is your unemployment situation. Clear? So are not titled into social security benefit. When we talk about informal sector, they do not have that type of social security, provident fund facility, gratuity. These type of benefit is not there when we talk about informal sector. And next, when we talk about formal sector, they can make a trade union, can form a trade union. अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज नहीं हो रही है सही, तो वो ग्रुप में बात करके या यूनियन बना के उस चीज पे आवाज उठा सकते हैं. बेसिकली ये सारी फैसिलिटी हमारी फॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल वालों के लिए नहीं है. सो कैन नॉट फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉ. अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, बिकॉज इन द मार्केट बिजनेस साइकिल आर देयर एंड 4 टाइप ऑफ बिजनेस साइकिल आर देयर. अब हम 4 टाइप की बिजनेस साइकिल क्या पढ़ते हैं? बूम होता है, रिसेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है, एंड रिकवरी होती है. 4 ये बिजनेस साइकिल के पीरियड हमने बताया. बूम होता है तेजी का, रिसेशन होता है मंदी, डिप्रेशन एक वो टाइम पीरियड जहां मार्केट में कुछ भी नहीं है, डिमांड सप्लाई. फिर थोड़ा टाइम पीरियड आता है रिकवरी का. बेसिकली 4 बिजनेस साइकिल की हम बात करते हैं. तो जो यही है, मार्केट में अनसर्टेनिटी चलती रहती है. कभी कभी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, कभी कभी डिफ्लेशन ज्यादा होता है. तो इनसर्टेनिटी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना, लेबर को जो उनके लिए लॉस बनाए गए हैं, ये सारी प्रोटेक्शन किस केस में हो सकती है? व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल सेक्टर, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटीज आर देयर. वहां पर हर टाइप की सिक्योरिटी है. लेकिन अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करूं ना, तो वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते. तो अनप्रोटेक्ट रहते हैं. जो भी लेबर्स के लिए, लेबर के बेनिफिट के लिए लॉस बने हुए हैं, वो बेनिफिट सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में ही मिल सकता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है. अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है.
आर देयरफॉर हाईली वल्नरेबल। कि अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी रहे तो उसके अंदर स्टैंड लेना, उसके अंदर खड़े रहना, वो किसके केस में नहीं हो पाता व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर। और अगर इकोनॉमी में इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो रहा है वर्कर का, तो वो ग्रोथ का साइन नहीं है। इट इज नॉट अ साइन, गुड साइन और पॉजिटिव एक्सपेक्ट फॉर द इकोनॉमी। व्हाई वी आर नॉट कंसीडर गुड साइन? क्योंकि देखो कैजुअलाइजेशन हो रहा है, हमने पढ़ा था कैजुअलाइजेशन बेसिकली वो सिचुएशन होती है व्हेन कैजुअल वर्कर्स आर मोर कंपेयर टू द टोटल वर्कफोर्स इन द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि समय के साथ साथ कैजुअलाइजेशन कैजुअल वर्कर्स का ज्यादा हो रहा है टोटल वर्कफोर्स में, टोटल काम करने वाले लोगों में। बिकॉज इन वर्कफोर्स वी आर कंसीडर दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग, we are not consider those people who are willing to work or ability to do work, because these are right now consider is an unemployment situation। तो लेबर फोर्स में तो हम काउंट कर सकते हैं लेबर फोर्स में तो हम काउंट कर सकते हैं वर्कफोर्स को भी, और जो काम करना चाहते हैं। बेसिकली जब वर्कफोर्स की बात आती है ना, we are consider those people only who are actually contribute in our GDP, who help in the value addition process। क्लियर है? तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज होती है, उस प्रोटेक्ट लॉ से प्रोटेक्ट करना वो फॉर्मल सेक्टर में होता है, इनफॉर्मल में नहीं होता। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इन दिस ओनली मींस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। इन एसेंस फॉर्मल वर्कर्स आर लाइक रेगुलर वर्कर। अब वो फॉर्मल है, वो रेगुलर हायर्ड वर्कर होते हैं, उनको प्रॉपर सिक्योरिटीज है, तो सैलरी भी टाइम से मिलती है। जब इनफॉर्मल की बात करें वो डेली वेजर्स है। अब उनको जो पैसा मिलता है उसे वेजर्स या वेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सिक्योरिटी। उसको कोई भी सिक्योरिटी, कोई प्रोविडेंट फंड की, कोई ग्रेचुइटी की, पेंशन, यही फैसिलिटी नहीं मिलती है उन्हें। उनके पास जब काम होता है तब वो उसके बदले उन्हें इन रिटर्न मनी मिल जाती है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव रेगुलर सैलरी और डू नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी। सो व्हाटएवर दे गेट out of doing the work, that one money is known as wages. That's why they are considered in the situation daily wages. नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज हाई, ऑलवेज लिंगरिंग थ्रेट। अब इनफॉर्मल सेक्टर का अनसर्टेनिटी में बाई चांस इकोनॉमी में ऐसा टाइम पीरियड आ गया, रिसेशन का, डिप्रेशन का टाइम पीरियड आ गया, डिफ्लेशन हो गया, उस केस में तो उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा। तो ये मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, इससे सेविंग फॉर्मल सेक्टर में तो हो सकता है क्योंकि उनके पास सारी सिक्योरिटी है। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल की सेक्टर की बात करें जहाँ कैजुअलाइजेशन है या डेली वेजर है, कैजुअल वर्कर्स है, उनको ये कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। तो कभी कभी किस केस में क्या होता है, अगर अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर आ गई, दे डू नॉट गेट मनी, तो उनको पैसा ही नहीं मिलेगा। इफ दे आर डूइंग द वर्क स्टिल दे डू नॉट गेट द मनी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन देयर। क्लियर? सो ऑलवेज वो हमेशा लिंकिंग, मतलब पुराने की बात करें पहले से भी और अभी भी, इस थ्रेट में उन्हें फेस करना ही पड़ता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है उन्हें उनके काम का पैसा भी नहीं मिलता। एंड द रीजन आर देयर ओनली वन, दैट इज अनसर्टेनिटी, बिकॉज इन सिचुएशन इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आर देयर। एंड इनफॉर्मल वर्कर्स इज मोर लाइक, अब इनफॉर्मल वर्कर्स को में हम कौन से वर्कर की बात करेंगे, रेगुलर हायर्ड की नहीं, क्योंकि रेगुलर हायर्ड तो आपके फॉर्मल सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, दे कैन प्रॉपर मेक अ ट्रेड यूनियन, दे आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ऑल द लॉज, सो कैजुअल एज वेल। तो अब इनफॉर्मल वर्कर्स की बात करें तो ये कैजुअल, इन्हें कभी कभी क्या है, जब भी काम होता है उसके बदले उन्हें पैसा मिल जाता है, तो दे आर कंसिडर्ड इन द कैजुअल वर्कर्स। सो नेक्स्ट, इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू, अगर इनफॉर्मलाइजेशन होगा, सॉरी इनफॉर्मलाइजेशन हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर हुए, बेसिकली किस चीज को बढ़ा रहा है, ये कैजुअलाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है, और कैजुअलाइजेशन का इकोनॉमी में इंक्रीज करना इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द ग्रोथ और फॉर द नियर फ्यूचर। व्हाई इट इज नॉट अ पॉजिटिव एक्सपेक्ट और व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट अ गुड साइन? अब वो क्योंकि इसमें वो वर्कर बढ़ रहे हैं जिनको कभी कभी काम मिल रहा है। अब कभी कभी काम मिल रहा है तो रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन द विच कैटेगरी एंड दे आर इन द विच सिचुएशन और कंडीशन, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। और इकोनॉमी में बेरोजगारी होगी या वो पर्सन पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे, इफ दे आर इन द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट हैपन इन द इकोनॉमी? इकोनॉमी में क्या होगा, बेरोजगारी होगी, डिमांड विल बी नॉट देयर, ठीक है, लोगों के पास इतने गुड्स ही नहीं होंगे बिकॉज दे डू नॉट हैव द मनी, पैसा नहीं होगा तो वो एसेंशियल गुड्स से सर्वाइव कर कैसे पाएंगे? बेसिकली क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन है तो वो किस चीज को बढ़ा रहा है, दैट इज कैजुअलाइजेशन को, कैजुअल वर्कर्स का ज्यादा होना। नेक्स्ट, इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स डिफाइन,
बेसिकली इनफॉर्मलाइजेशन क्या सिचुएशन है जिसमें कैजुअल वर्कर्स टाइम पीरियड के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर। अब कैजुअल वर्कर्स है, कैजुअल वर्कर आपके किसके अंदर कैटेगराइज थे, दे आर कंसीडर इन इनफॉर्मल सेक्टर। सो फॉर इकोनॉमी में फॉर्मल सेक्टर्स इज लेस एज कंपेयर टू देयर इनफॉर्मल सेक्टर, वही आपका कैजुअलाइजेशन था जिसमें कैजुअल वर्कर्स ज्यादा थे। इज फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर, और टाइम पीरियड के साथ साथ इनफॉर्मल सेक्टर्स आर देयर मोर, मतलब वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इन अकॉर्डिंग विद द सोशलिस्टिक पैटर्न, जो सोसाइटी का पैटर्न था जिसमें हम सेंट्रल गोल की बात करते हैं। अब सेंट्रल गोल्स होते हैं आपके जैसे जीडीपी ग्रोथ होना, इक्विटेबल और इक्विटी होना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना। तो ये जो सेंट्रल ग्रोथ है, जो प्लानिंग लॉन्च किए गए थे 1951 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, और वी कैन से दैट पर्सपेक्टिव प्लान, ये प्लान्स जो बनाए गए थे, इसके अंदर इकोनॉमी में हमें क्या देखना चाहिए था कि फॉर्मल सेक्टर ज्यादा बढ़े, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर को सारी सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, दे कैन मेक अ गुड यूनियन और दे कैन फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, क्लियर, दे हैविंग ऑल द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर देयर। अगर फॉर्मल सेक्टर का प्लान्स के अकॉर्डिंग दे फॉर्मल सेक्टर भी शुड राइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम in for the near future, but instead of this, which sector are more rising, that is informal sector, who are the daily wagers, who do not have any social securities and who are in the casual workers, clear? So should have risen, informal sector should be decline over the time के साथ informal sector decline हो रहा है। Last the opposite has happened, economy में हमने सोचा तो ये था, according to the plan government was decided on that time that formal sector will be there, formal sector will be increase more, but what happened in this, informal sector will be rise, जो कि अपोजिट हो गया, जो ये तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का बढ़ना इकोनॉमी के लिए नेगेटिव साइन की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ वो वर्कर्स ज्यादा हो रहे हैं जिनके पास रेगुलर और फिक्स सोशल सिक्योरिटी नहीं है, दे डू नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर देयर, उनके पास रेगुलर वर्क नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इन दिस ओनली अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लॉन्च किया गया था 1991 में, कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसीज के अंडर विद लिबरलाइजेशन विद ग्लोबलाइजेशन आर की एलिमेंट, यही मेन थे, फ्री फ्रॉम द लाइसेंस अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेट राइट्स गिव टू द ओनरशिप राइट, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर था, मींस गवर्नमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग दैट राइट टू द ओनरशिप राइट टू द प्राइवेट सेक्टर। G means basically globalization, full globe is a single market where we can easily do export and import activities. Consequently there is a significant transform, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में हुआ था कि कंट्रोल इकोनॉमी की जगह आपकी मार्केट और मिक्स इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी बेसिकली, मिक्स के अंदर तो गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड हो गए। जो कंट्रोल था, कंट्रोल बेसिकली वी आर सेइंग हियर अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, कि हम सरकार की बात कर रहे हैं, जो सारा कंट्रोल सरकार का था, नाउ वी आर हैंड ओवर दिस थिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, बेसिकली मार्केट इकोनॉमी। नाउ प्राइस विल बी डिसाइडेड ऑफ द प्रोडक्ट only to the demand, market word is there, and in the market what happen, demand and supply will be there only. So economy में now control economy, which means government have the power कि वो कंट्रोल की बजाय किसके राइट में चले गए, मार्केट इकोनॉमी में। क्लियर? सो एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रिफ्ट ऑफ, अब इन द इसमें चेंजेस आया, क्योंकि हमने सोचा तो ये था, गवर्नमेंट वाज डिसाइडेड ऑन दैट टाइम मे बी फॉर्मल सेक्टर विल बी मोर इंक्रीज एट अ पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर द नियर फ्यूचर, बट विच सेक्टर आर इंक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वर्कर ऑफ फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर मीन्स इनफॉर्मल वर्कर आर विल बी मोर मीन्स इंक्रीज, कि विल भी नहीं, कि वे फ्यूचर में होने तो अपने फॉर्मल सेक्टर के चाहिए थे, लेकिन इनफॉर्मल के ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये तो सोचा ही नहीं था, बट दिस इज नॉट केम टू द प्लान ओनली, बट व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर देयर, people are not engaged or all do not get sufficient employment opportunity which they want to do. Clear? So informalization work perhaps they are strongly correlated. अब अगर हम देखें इनका correlated है, correlated word क्या होता है, जब हम relations की बात करते हैं, दो सेक्टर या दो ग्रुप्स के बीच में, फैक्टर्स के बीच में हम रिलेशन की बात करते हैं, then we will use the word correlated. Informalizations is driven by the force of, informalization कैसे हुआ कि लेबर मार्केट के अंदर यानी
जहाँ लेबर वर्क कर रहे हैं वहां पे डिमांड और सप्लाई से बात होता है। मार्केट में दो ही चीजें होती हैं, हियर वी टॉक अबाउट द मार्केट फोर्स, बेसिकली कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। प्रेजेंटली फॉर्मल सेक्टर वर्क कम टू नियरली, अब फॉर्मल सेक्टर कितने आए 30 मिलियन, दैट इज 6%, 6% की बात करें आउट ऑफ टोटल वर्क फोर्स, 473 मिलियन वर्क, रेस्ट 94% वर्कफोर्स की अभी भी क्या है, देखो सिर्फ 6% की है। सोचा तो ये था कि कंप्लीट फॉर्मल सेक्टर विल बी इंक्रीज फॉर द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, बट नाउ ओनली 6% आर देयर आउट ऑफ 100 की, मतलब अगर हम देखें रेशो मतलब 1/3 भी नहीं है, ये तो रेशो इतनी कम है, सिर्फ 6%। अगर ये होता ना कि हाफ भी नहीं होती या हाफ से भी कम होती, लेस देन हाफ, दैट इज नॉट, ये तो ओनली 6% आर देयर। रेशो अगर देखे 94% तो ऐसे लोग हैं विच आर कंसिडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर who do not having any social security regarding their employment, regarding their source of income, they do not have this. सो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर देखो 94% ऐसे लोग हैं जो अभी भी इनफॉर्मल है, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम नहीं करे, दे कांट मेक एनी टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन। आउट ऑफ 3 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स 6 मिलियन दैट इज 20% ऑफ वुमेन। अगर हम उसमें बोले फॉर्मल सेक्टर में कि 30 मिलियन अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करें वर्कर्स, ओनली 6 मिलियन दैट इज 20% उसमें से क्या है वुमेन है। व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर नाउ 70% ऑफ वर्कफोर्स, अब इनफॉर्मल में से आउट ऑफ 100 रेशियो 70% आर दोज who are having the male, अगर मैन सॉरी अगर हम जेंडर की बात करें तो, एंड 30% वर्कफोर्स क्या है जिसमें हम वुमेन की बात करें, तो यहाँ भी देखो जेंडर बायस इज देयर, डिस्क्रिमिनेशन। व्हाई दिस हैपन, बिकॉज फॉर द वुमेन डिसीजन आर नॉट फॉर इंडिविजुअल, मतलब उस वुमेन का खुद का डिसीजन नहीं होता रिगार्डिंग देयर मैरिज, रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, ये कौन डिसाइड करते हैं, उनकी फैमिली डिसाइड करते हैं, फैमिली विल डिसाइड फॉर इट। नेक्स्ट इन द वर्कर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर की रेशियो की बात करें, अब देखो फॉर्मल सेक्टर के अंदर 24 तो ऐसे हैं जो मेल है और 6% ही है जो फीमेल है। फॉर्मल वो विच आर ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कैजुअलाइजेशन नहीं है, जिसमें रेगुलर हायर वर्कर है। व्हेन वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर दे हैविंग कैजुअलाइजेशन आर देयर, सो फीमेल इन दिस इनफॉर्मल सेक्टर में 133 तो आपकी क्या है फीमेल है, और मेल आर मोर, तो 310 इज मेल ओनली। सो आप इस रेशियोज में यही बता दोगे कि इसमें कितने सेक्टर है, सबसे पहले आप इनका कंपैरिजन में बताओगे। द कीपिंग विद द एफर्ट ऑफ इंटरनेशनल, चाहे एफर्ट की है स्टिल व्हाट हैपन हियर, विद द एफर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज ILO, बेसिकली ये क्या है, ये लेबर की वेलफेयर के लिए वर्क करती है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटिव मॉडर्नाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन बेसिकली कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं तो वेयर एफिशिएंट टेक्निक्स विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मैन पावर स्किल्स। सो मॉडर्न इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस, अब प्रोविजंस क्या है कि सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट हो, इस स्टैगरिंग नंबर ऑफ 400 करोड़ वर्कर्स वर्क इन 44 करोड़ है जो किस सेक्टर में है ज्यादा, वो है इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये इकोनॉमी के अंदर क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज अनसर्टिनिटीज आर देयर विच इज नॉट कंसिडर अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट, लिटिल वंडर दैट इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू, अब इनफॉर्मलाइजेशन होगा, उनके पास पूरे साल के लिए काम नहीं है, बट इट इंक्रीज द पॉवर्टी। सो बेसिकली देयरफॉर फ्रेगमेंटेशंस ऑफ सोशल हार्मोनी, अगर सोसाइटी की फ्रीडम की बात करें उसमें तो फ्रेगमेंटेशंस हो गया। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हेन अ पीस इज हियर एंड देयर। अब यहाँ क्या है, कुछ टाइम के लिए तो काम है, कुछ टाइम के लिए काम ही नहीं है। अब वो जो कुछ टाइम के लिए काम नहीं है बट इट इंक्रीज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दे आर इंक्रीजिंग द सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है। क्लोजर टू टेक्सटाइल माइल्स, अगर हम इसकी बात करें इंडस्ट्रीज की जो अहमदाबाद में ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट, जिन्होंने 1,50,000 लोगों को क्या है वर्कर को काम दिया है। कपड़ों की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, वेयर इट इज अहमदाबाद, दैट इज वन ऑफ द बिग इंडस्ट्री एंड कॉन्सिक्वेंट रूट्स टू टेस्टोनॉमी। और ये किसके लिए कि लोगों के पास काम होगी तो ऑब्वियस है उनके पास इनकम का सोर्स आएगा। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी वेयर माइल वर्कर्स आर रेंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली को क्या करना पड़ता है ज्यादातर, फिर भी अभी क्या है बेरोजगारी की सिचुएशन में है, दे हैविंग विच सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, एंड बेसिकली इफ दे आर इनफॉर्मल सेक्टर और अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर, their family took to casual job, which they do not have enough any another option, they have to do casual works, casual jobs, and many of them even took suicide days.
सुसाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि देखो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उनके पास होती नहीं, इतनी उन्होंने बोरोइंग कर चुके होते हैं कि उन्हें लोगों का पैसा पे बैक करना होता है। जब उनके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इनकम का सोर्स तो आ नहीं रहा, पॉपुलेशन आर सो मच, और अब भी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बेसिकली सुसाइड इज अ लास्ट ऑप्शन फॉर देयर, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचता, इतना लोगों का पैसा देना होता है, एंड बेसिकली द नॉट एज वन सिचुएशन वेयर इनकम सोर्स आर देयर, बट दे विल डू अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ हार्डशिप इज suicide only, and that is not a good thing. So next, when we talk about in this topic only, that is of unemployment. Unemployment basically वो situation जहाँ लोगों के पास काम नहीं है, they do not have the work, that why they are considered in which situation, that is unemployment situation, बेरोजगार. So unemployment situation and people are willing to work, जो wage rate दे रखा है उस पर willing to work, अब वो काम करने के लिए रेडी भी है, but they do not have the work, as well as able to work but are not getting work. उनके अंदर कैपेबिलिटी है, स्किल्स हैं, इवन वो जो वेज रेट उन्हें मिल रहा है वो एग्री भी हो गए उस वेज रेट को, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वर्क करने के लिए, बट नॉट गेटिंग वर्क, बट फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है. इट शुड बी नोटेड दैट विद एम्फेसिस सच पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट आर नॉट कंसीडर. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, हम उनसे बेरोजगार नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो मतलब उनकी पोटेंशियल है, उनके स्किल्स है, उनके माइंड में ये चीज आ गई कि वे दे आर नॉट गेटिंग वर्क. नॉट गेटिंग मीन्स दे आर नॉट विलिंग टू वर्क. कहीं जिनको काम नहीं मिलता हम उसे तो बेरोजगार बोल देंगे, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं जो वेज रेट अवेलेबल है, लेकिन और विलिंग भी है, एग्री भी है, कैपेबिलिटी भी है काम करने की, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, उनको तो सिचुएशन में डालेंगे हम बेरोजगारी की. These people we are saying unemployment situation, but the people they are not willing to work at existing wage rate and not agree to work, we are not considered in the situation of unemployment. हम उनसे बेरोजगारी की सिचुएशन नहीं बोलेंगे, because they do not work at all, वो काम ही नहीं करना चाहते, they are not willing to work. Next, in this only, so basically unemployment is a situation where people willing to work, agree to work at existing wage rate but not getting the work. काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिल रहा, तो वो situation होगी unemployment की. In this some peoples are there who are not willing to work at all. So they don't want to work. If they do not want to work, we are not considered in the situation of unemployment, because sometimes they getting work also at the existing wage rate, but they do not want to work. When the situation are there, they are not willing to work or want to work, then we can use the word, then we cannot say these people in the situation of unemployment, because their mind is their thinking is one only, that is they do not want to work at all. Two principal type of unemployment. When we talk about India, two type of unemployment situation are there, that is disguised unemployment, छिपी बेरोजगारी, and next is seasonal unemployment. Most of the things are we can see these type of unemployment in the farming activities. So basically disguised unemployment occur when number of worker engaged in the job is much more than actually required. अब देखो लेबर की रिक्वायरमेंट थी 10 और वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं 12, तो बेसिकली दिस 2 वर्कर्स अगर नहीं भी होते तो भी क्या है, हमारा काम हो जाता अगर ये 2 वर्कर नहीं भी होते. तो बेसिकली क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है कि उन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, स्टिल दे आर डूइंग वर्क, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए, फॉर द नेम सेक ओनली. व्हेन नंबर ऑफ वर्कर इंगेज, जो काम करने वाले नंबर्स है जो जॉब के लिए, इज मच मोर देन, वो ज्यादा है, विच इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट, जितनी हमें जरूरत है उसके कंपेयर में जो काम कर रहे हैं लोग वो ज्यादा है, एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकॉम्प्लिश इट, जितनी रिक्वायरमेंट है. इफ सम ऑफ देम आर विड्रॉन फ्रॉम द जॉब, नाउ सम ऑफ देम आर अबॉलिश फ्रॉम द जॉब, अगर वो जॉब से हट जाए फिर भी काम हो जाएगा. टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल, उससे प्रोडक्शन भी आपकी क्या है, विल नॉट फॉल आउट ऑफ दिस. So if just 2 person are required, we are taking some example there. अगर 2 person की require है cultivation activity पे, measuring of 1 hectare, but actually 5 person are engaged. अब basically वो 3 person है तो क्या, वो बेरोजगार या disguised unemployment are there, क्यों अगर वो 3 नहीं भी होते तो भी काम हो जाता. तो ऑब्वियस अगर कोई है तो उनसे काम करा लेते हैं, बट अगर वो नहीं भी होते तो रिक्वायरमेंट नहीं थी. If they are withdrawn from this work also, they can easily do the work at particular time of period. Measuring 1, actually 5 person are engaged, 3 person are disguised unemployment. वो 3 person की जरूरत नहीं थी, तो वो कौन सी सिचुएशन है, या उन पर्सन को हम क्या बोलेंगे, disguised unemployment. जहां जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं बिना रिक्वायरमेंट के, वो कौन सी सिचुएशन है, that situation is known as disguised unemployment.
इज रैम्पेंट इंडियन एग्रीकल्चर में, तो बेसिकली बहुत ज्यादा है. व्हाई दिस मोर इन द इंडियन एग्रीकल्चर? ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट, क्योंकि देखो जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसा है, वो अपने बेटे को घर से शहर से में जाने ही नहीं देते. दे डू नॉट वांट टू माइग्रेट, क्योंकि उनको लगता है हमारा खुद का बिजनेस है, वही बच्चा करेगा. फार्मिंग फैमिली कंटिन्यू टू वर्क ऑन फार्म, फैमिली की लैंड पे ही काम करेंगे चाहे वहां जरूरत भी ना हो उनकी. No matter actual number of workers, doesn't matter actual number of workers is far exceeds if, as compared to their requirements. The required number per person holding size continue wishing. When we talk about the agriculture sector and their land, the persons who having their land is actually the size of land is small there. इतना पैसा नहीं होता, इतनी जमीनें नहीं होती. सो पर पर्सन कंटिन्यू श्रिंक विद द एक्सपेंशन. अब जैसे जैसे फैमिली का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से अब सबको जमीन बांटने लगे, तो उन पर पर्सन फैमिली का साइज, सॉरी लैंड का साइज, बिकॉज ऑफ राइजिंग द फैमिली सो मच, फैमिली की इतनी ज्यादा बढ़ी है, तो सबके पास लैंड का बहुत छोटा पार्ट आ जाता है. तो वो इतना कम पार्ट आता है जिसपे वो कंटिन्यूसली खेती बाड़ी नहीं कर सकते. इंप्लाइंग ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्गाइज, और वो किस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं? दैट इज योर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. अब एग्रीकल्चर से बाहर की बात करें, वी डिड दिस टॉपिक, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर आर नॉट प्रोवाइडिंग इनफ एंड एम्पल सफिशिएंट जॉब फॉर द प्राइमरी सेक्टर. So they were compelled of doing this work. They have to do this work only. So outside compels people to work on the, अब वो फैमिली फार्म्स पे काम करना पड़ता है. It further increase the, अब ये किस चीज को बढ़ा रहे हैं? They are increasing the possibility of disguised unemployment only. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब सबसे ज्यादा ये एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलती है. अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज योर सीजनल, क्योंकि देखो सोइंग टू हार्वेस्टिंग का टाइम अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, वो इतना लंबा हो जाता है. उस टाइम पीरियड में कभी कभी क्या होता है, पर्सन्स आर कैटेगराइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, वो बेरोजगार हो जाते हैं. अब सीजन है, जब सीजन का काम हो, सीजन चलता है, तब तो उन्हें काम मिल जाता है. रेस्ट ऑफ टाइम दे आर नॉट, दे डू नॉट हैविंग द वर्क. सो बिकॉज एग्रीकल्चर, और अगर हम खेती बाड़ी की बात करें, दैट इज सीजनल ऑक्यूपेशन. पूरा साल अगर हम काम देखें वो नहीं होता है इसमें बेसिकली. ड्यूरिंग ऑफ सीजन फार्म वर्कर क्या होते हैं? जो फार्मिंग एक्टिविटी पे आउट ऑफ द जॉब, काम ही नहीं होता, फिर वो माइग्रेट होते हैं, या वो चेक डेली वेजेस, फिर उन्हें मजबूरी में कैजुअलाइजेशन होता है, कैजुअल वर्कर्स होते हैं कि जब काम होता है तब वो काम, उनके बदले उन रिटर्न दे गेटिंग मनी फ्रॉम इट. दे हैव नो वर्क, और कुछ टाइम उनके पास काम ही नहीं होता. द वॉल्यूम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अब वो वॉल्यूम, वो साइज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि मेथड क्या है कल्टीवेशन का फार्मिंग एक्टिविटीज पे, या किस कंडीशन पे, लैंड का साइज कितना है, किस अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हो. Remains unemployment 5 to 7 men rural area beside agriculture. There are many activity they are doing instead of agriculture, allied activity like sugar crushing, brick kilns, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर में टाइम ही नहीं होता, या इतना काफी कई बार काम नहीं होता. That's why agriculture is known as seasonal occupational work. क्लियर. वर्क इन दीज एक्टिविटी रिमेन ऑक्यूपाइड, वो कुछ ही महीने करते हैं, बाकी के टाइम फिर दे आर कंसीडर इन द अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी. टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक दैट इज कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. व्हाई दिस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि क्यों इकोनॉमी देश के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, क्या रीजन क्या है, कारण क्या है. Tomorrow we will continue with this topic. Till you will revise all this topic. I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.